definitely comedy. Okay. So like we said, it's not a horror comedy, it's a comedy of horrors. Okay. It's a very self-aware film, so it's a spoof, it's a parody. It takes situations of pop culture, real life, things that we've seen, we've grown up with, and turns it around on its head and gives it back to you in a way you don't expect. So it's about finding that humor that's there for everyone to see, but oh, ये भी तो funny था. It's that kind of film, and it's that kind of a world. और उसमें हम भूत यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे भूत भी क्यूट है, हमारे भूतों की भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हमारे भूतों से शायद आप डरेंगे नहीं, पर उनसे प्यार जरूर कर बैठेंगे. Okay, I have one answer. It's not scary or very fun, but I think I would haunt Priyanka Chopra for a day to understand how she manages to work as much as she does. Nice. How she manages hustle to that fly here, fly there, fly back, fly there. I would actually want to haunt Gurmeet, our director, to understand कि how did our writers and our director think of characters जो actually इस फिल्म में भूतों को हम haunt करते हैं. That's the flip side of the coin in this film कि हम भूतों के इतने बड़े fan हैं कि भूतों को हम haunt करते हैं, वो हमसे परेशान हैं. Vicky absolutely loved the trailer. Actually, हम दोनों we showed the trailer to Vicky, and he had such a good reaction. It gave us even more confidence and happiness. And I think he really just feels that the film is something which is fun and people are going to connect to. You know, I think right now people want to come and have a good time and, you know, watch something funny, enjoy themselves. And I think that's what we're all hoping that this film will do. उनके साथ जो बड़े वाले भूत हैं, जो इनके पति, उनको कौन आप संभालेंगे? भूत हार्ट जवाब, भूत है ना? तो हाथ बंधे हुए, दूर से प्यार होगा, दूर से प्यार. मस्का है मस्का, ये लड़के लोग एकदम स्मूथ काम करता है, जरा भी ऐसा लगता नहीं कि हम लोग को जैसा प्रेशर था कभी, आज भी होता है. बहुत कड़क, मतलब मस्का नरम, एकदम निकल जाता है, मालूम ही नहीं पड़ता है. बहुत अच्छा है. It's you learn a lot from these young lads, young Gurmeet out there. बहुत भारी संभाला है उसने. लड़के लोग से सीखने का है भाई. कान खुला रख, मुंह बंद रख और खींचते रहे जितना खींचने का. You guys are great. I think I'm really honored. You are there, and these honor is ours. Honor तो है, मगर तुम लोग भारी है. तुम लोग बहुत भारी है, and I'm really happy to have worked with. आप भारी, हम हल्के हैं सर. वजन में हो सकते. मेरा तो मतलब सौभाग्य है कि इस जो सदी की मतलब सबसे कमाल की कलाकार हैं तीनों, और उनके साथ स्क्रीन शेयर करने का मुझे मौका मिला. और किसी भी लड़के का एक ये सपना होता है. तो मैं बहुत ही ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा मेरे दोस्त बड़ा प्राउड फील करते हैं. मतलब ghosting. What is the meaning of इग्नोर. इसके देखिए Ignore. दो मतलब हो सकते हैं. अवॉइड. या तो क्या आप कहना चाह रही कि हम घोस्ट करके मतलब उड़न छू हो गए, या फिर हम किसी को हॉन्ट कर रहे हैं, उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहे. They're very smart. They're very bright. And what I actually loved about them the most in this film, because this is the only film I've done with them, is they're very spontaneous and they're good at improvisation. So for me, that was something which was required in a film like this, because you're kind of, you know, when you're in the scenes, you got to see what's working on that moment. You have to be quick. You can't just stick to the script. So they actually had that, even though, like you said, they've not done that many films. They had that in them to just, you know, improvise on the spot. Why have you saved such an interestingly boring question for me? मैं क्यों लग रहा हूँ कि मेरे पास इसका जवाब होगा? यार ये बहुत लंबी डिस्कशन है. यहाँ पर दूसरी अच्छी हंसी मजाक की बात करते हैं. ये तो मतलब पीछे पड़ गई थी, कह रही थी मुझे भूत बनना है. हम लोग बिल्कुल आपकी तरह सोच रहे थे कि कटरीना को भूत हम लोग कैसे बनाए. बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. बट शी वांटेड टू प्ले गोस्ट. नहीं मैडम, बात ये है कि मतलब कहानी अच्छी होनी चाहिए, एंटरटेनिंग होनी चाहिए. हर तरह की फिल्म बार बार बनती है. लव स्टोरीज 1000 बन चुकी हैं, ड्रामाज 1000 बन चुके हैं, एक्शन फिल्म्स, रिवेंज ड्रामाज 1000 बार बन चुके हैं. तो ये भी एक जॉनर है. सिर्फ ये बात होनी चाहिए कि जो कहानी पहले बनी थी उस कहानी से मिलती जुलती कहानी ना हो, और वही कोशिश की हमने, और उम्मीद करेंगे कि जब आप देखेंगी तो फोन भूत हिट होगी. आई थिंक मैं ये कहानी ऑलरेडी मैं दोहराऊंगा इसे, लेकिन हमारे लिए पहला दिन काफ़ी फ़नी था, क्योंकि एक रिदम सेट हो गया था हमारे सेट पे. सिद्धांत और मैंने फिल्म की शूटिंग की शुरुआत साथ में की थी. एक आध दिन हम शूटिंग कर चुके थे,
और हमें आदत पड़ चुकी थी कि हमें कैसे ट्रीट किया जाएगा सेट पे। और फिर 4 दिन बाद कटरीना मैम आई सेट पे और माहौल यूं बदला कि हमें इमीडिएटली समझ में आ गया कि इस फिल्म का जो रिदम है और इस फिल्म में जो बैलेंस होने वाला है वो कैसे होने वाला है। बट वी वर वेरी हैप्पी अबाउट इट बिकॉज वो रौनक ले आई सेट पे। शी इज़ प्लेइंग अ गोस्ट इन द फिल्म, तो नूर तो था ही उन पे, शी वाज ग्लोइंग। ये उस तरह की फिल्म है जिसमें आप अपने परिवार को लेकर आ सकते हैं। जैसे कि इन्होंने ऑलरेडी जो कह चुके हैं कि ये ज़्यादा डरावनी भयानक तो है लेकिन डरावनी किस्म की फिल्म नहीं है ये। इसमें हॉरर जो है वो उसका कॉमेडी वाला एलिमेंट है। एक्चुअली आप फिल्म देखेंगे तो वो भी सिचुएशनल है। तो कोई एक भूत है, क्योंकि हम जैसे हम सोच रहे थे कि फिल्म पैन इंडिया होनी चाहिए, बहुत डिस्कशन थी कि पैन इंडिया होनी चाहिए, तो हमने दूर दूर देश से भूत लेके आए। तो हमारे फिल्म में बंगाली भूत भी हैं, पंजाबी भूत भी हैं, साउथ इंडियन भूत भी हैं। तो एक पंजाबी भूत है जिनको नाचने का शायद शौक हो सकता है, तो उनके लिए काली तेरी कुत्ते पर आंधा तेरा लाल नहीं। बहुत मुश्किल था मैडम, बहुत मुश्किल था, लेकिन कॉमेडी नहीं, बट ऑनेस्टली जैसे आपने कहा इसमें बहुत कुछ है, लेकिन इट इज़ मोर लाइक एन एडवेंचर कॉमेडी, इट्स वेरी इंगेजिंग। और ये एक फिल्म है जो आप अपने एंटायर फैमिली के साथ, वेदर चिल्ड्रन वॉच इट विद योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, फैमिली, लेकिन द एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ फोन बूथ विल बी इन अ कलेक्टिव व्यूइंग। मतलब एक ग्रुप बना के देखिए तब आपको फिल्म में मज़ा आएगा। एंड उसके बाद ही जो कटरीना ने फिल्म में किया वो शायद हमारे लिए भी ट्रू हो जाए कि हम भी फिर पैसे कमाएंगे। So for that you have to get out of your homes and come and watch the movie. Shiba ji actually, she's one of my favorite actresses. मैं इनके साथ काम करने का was one of the best days of the film, few days of the film. I would get lost just looking at her because she's so real. But there was actually one more scene in the film that Siddhant has a dialogue. Ghoda, yeah. In that scene, he's supposed to come to me. And his dialogue ends when he's right here, and I'm supposed to be like angry. That I couldn't control. I was like, that was fun. जब मैं डायलॉग बोलने इतना पास आता था ये और मैं सीरियसली वो डायलॉग गुस्से में बोल रहा हूँ और ये मुझे देखती थी, 1 सेकंड होल्ड करती थी और हंस देती थी हर बार। और ये हमने बहुत सारे टेक लिए हैं इसमें और फिर जाके कैसे तैसे वो हुआ है इनकी हंसी कंट्रोल करके बट मज़ा आया।